Today in this video, we are going to solve the ATP paper of 12th class physics of year 2021. So here we have total of 15 questions. So we are going to solve only those questions that are related to the theory part of our course. So first of all, we have question number 51. Which of the following relation is used to find the equivalent capacitance for the combination of given capacitors? So as we can see, the combination of capacitors in this given diagram is the parallel combination. So the in parallel combination, all the capacitors C1, C2 and C3 they have one common terminal and the other terminal is also common. इस तरह का जो combination है वो parallel combination कहलाता है और parallel combination के लिए जो equivalent capacitance का formula है वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि हम टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम तमाम कैपेसिटर्स को डायरेक्टली ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 plus C2 plus C3. So in this way, the right answer for this question would be option A, C1 plus C2 plus C3. Now let's see question number 52. In this question, we have two or more capacitors that are connected in series and their equivalent capacitance as compared to the individual capacitance will be. So let's say we have three capacitors connected in a series combination. So let's say this is 1 microfarad, this is 2 microfarad and this is 3 microfarad. So the total capacitance in the series combination will be equal to 1 over C1 1 over C2 plus 1 over C3. So इस तरह से अगर हम इन तमाम कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो 1 over 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3. तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी इट विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड. सो इन शॉर्ट, जब भी कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो तमाम कैपेसिटर्स की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हमेशा कम आती है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल capacitance. So in this way, the correct answer for this question number 52 will be option B. Let's come to the question number 53. In an electric circuit, the initial electric current at the beginning of a charging of a capacitor is. So let's say we have a capacitor that is being charged with the help of this resistance R. तो इस R के साथ रेजिस्टेंस के साथ हमारे पास एक कैपेसिटर मौजूद है जिसे हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि इस कैपेसिटर को हम चार्ज कर सकें. लेट्स से द पोटेंशियल और द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज V. So we know that if these two are connected in series, so total voltage will be equals to the voltage at the resistance R and the voltage at the capacitor C. So the voltage at the capacitor is equal to, we know that Q is equal to CV. So in this way, the VC will be equals to Q charge on the capacitor divided by its capacitance, and voltage at the resistance R will be equals to IR. This is equal to the total voltage. So अगर हम start में देखें, at time is equals to 0. Time 0 पे charge is almost 0. This can be shown with the graph of charging of a capacitor that is between time and the charge Q. So initially जो है वो charge 0 होता है, then at an equilibrium position वहाँ जाके फिर जो है वो जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो कांस्टेंट हो जाता है और करंट 0 हो जाता है. So in short, initially the charge is 0. So if we can take Q is equal to 0, अगर हम जो है वो इस Q को equal to 0 लेते हैं because initially charge 0 है, so this complete ratio becomes 0
Q अपॉन C पूरा जो है वो जीरो हो जाता है, और ये जो R है इट इज कांस्टेंट, आर जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है आई की जो वैल्यू है इट विल बी मैक्सिमम, आई जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा एट द स्टार्ट और द बिगनिंग ऑफ द चार्जिंग प्रोसेस। अगर कैपेसिटर जो है वो टाइम टू टाइम चार्ज हो रहा है, इट्स मीन क्यू की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यू की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो हमारा जो रिलेशन था V इज इक्वल्स टू आई आर प्लस क्यू ओवर सी। तो इसमें जो सी और आर है ये दोनों तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अगर क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साथ साथ करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, एंड एट टाइम इज इक्वल्स टू टी सेकेंड्स, जब टाइम टी सेकेंड्स हो जाएगा तो जब और कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा, capacitor is fully charged. So at that time the current across the capacitor is equal to 0. So in this question number 53 हमारा जो right answer है वो equal वो होगा option C, that the initially the current is high or maximum. उसका reason हमने यहाँ इस equation के through represent किया। इसी तरह से एक और तरीके से हम इसी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड टाइम। सो द ग्राफ और द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू करंट। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप देखें तो स्लोप जो है वो करंट के बराबर है, दैट इज क्यू अपॉन टी। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम स्लोप लेते हैं तो स्लोप जो है वो उसका रिप्रेजेंट करेगा करंट को। सो अगर हम इस पॉइंट पे देखें स्टार्ट में तो हमारा जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इस लाइन का जो स्लोप है इट इज मैक्सिमम और infinite, that shows that the current at the starting of the capacitor is maximum. So finally the correct answer for this question number 53 is option C. Let's come to question number 55. For the measurement of potential difference in an electric circuit, we have several different options for the measurement of voltage. We have a potentiometer, we have a voltmeter, but we prefer potentiometer over वोल्टमीटर। दोनों वोल्टेज मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए डिवाइसेस हैं, बट स्टिल वी वुड प्रिफर potentiometer over voltmeter. So voltmeter जब हम यूज करते हैं, we know that ideally it has very high resistance. Ideally जो है वो उसकी resistance बहुत ज़्यादा high होती है, and secondly it is always connected in parallel. But still जब हम voltmeter को यूज करते हैं तो it draw certain very low amount of current. ये कुछ ना कुछ करंट जो है वो अपने अंदर से ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से जो मेजरमेंट है वोल्टेज की उसमें वेरिएशन या अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। जबकि अगर हम अपने पोटेंशियोमीटर की वर्किंग को रिकॉल करें तो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग में हम नल पॉइंट मालूम करते हैं, और नल पॉइंट जो है वो जिसके अंदर करंट जो है वो इक्वल हो जाता है 0 एम्पेयर के। सो करंट ड्रॉ नहीं होता, जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर गिव्स द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन शॉर्ट voltmeter draws certain amount of current, while potentiometer जो है वो अपने अंदर से करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट का, जिसकी वजह से जो रीडिंग और जो मेजरमेंट प्रोवाइड करता है पोटेंशियोमीटर, इट इज more accurate over the voltmeter. So in this way the option C would become our right answer, that the potentiometer does not take current from the circuit. Let's come to our question number 56. The given graph shows the relationship between the potential difference across the terminal of the cell and the current drawn from the cell. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ मौजूद है, और the electromotive force and the internal resistance of the cell are. तो इस ग्राफ की मदद से हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेल का जो EMF है और सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। So we know that the electromotive force is equal to voltage across the external circuit plus IR, that is the that is the energy dissipation within the
within the battery or cell. So in this, from this given equation, voltage हमारा equal हो जाएगा EMF minus IR. सो इस इक्वेशन की मदद से हम वैल्यूज को लेते हैं और वैल्यूज लेकर आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ग्राफ में से कुछ वैल्यूज आप फाइंड आउट करते हैं. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0. सो व्हेन I is equal to 0, at this point the value of V is equal to 2. Similarly, when V is equal to 0 and I is equal to 5. तो यहाँ से हमने इन दो पॉइंट्स पे वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया है. फर्स्ट इज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0 and 2 और सेकेंडली हमने ये वाला पॉइंट मार्क किया है दैट इज 5 एंड वोल्टेज 0. सो इस ग्राफ की मदद से और ये जो दो पॉइंट्स हमने निकाले हैं और इन चारों ऑप्शन में से वन बाय वन इन वैल्यूज को हम लेते जाएंगे और वेरीफाई करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर. तो मैं सबसे पहले जो है वो ये फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ इन विच A इज इक्वल्स टू 2 एंड R इज इक्वल टू 0.4. तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ इसे वेरीफाई करता हूँ. A इज इक्वल्स टू 2 and R is equals to 0.4. इक्वेशन हमारी ये है V is equals to E minus IR. तो इसी इक्वेशन को लेके मैं यहाँ वेरीफाई करता हूँ. V is equals to E minus IR. So in this set of values V is equals to 2, E is equals to 2, minus I is equals to 0 and R is equals to 0.4. So 2 is equals to 2. तो ये जो हमारी सेट ऑफ वैल्यूज थी, ये सेट ऑफ वैल्यूज जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, दिस गिवन इक्वेशन उसको वेरीफाई करिए. सो इसी तरह से दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के साथ भी हम वेरीफाई करते हैं दैट V is equals to E minus IR. So value of V is 0 in this set of values and A is equals to 2 minus I is 5 and R is 0.4. So इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 multiplied by 0.4 is equal to 2. So 0 will be equal to 0. It's mean कि ये जो हमारे पास ऑप्शन ए में सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रेजिस्टेंस की, ये वैल्यूज हमारी गिवन इक्वेशन को और गिवन ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है. सो आवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. सो रिमेनिंग जो 3 ऑप्शंस हैं वी कैन चेक टू वेरीफाई दैट दिस सेट ऑफ वैल्यूज विल नॉट satisfy the given equation and the values from our graph. Let's see question number 59. In this given NPN transistor, the minority carriers are. So we know that in NPN transistor, the majority carriers are electrons. NPN ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. NPN ट्रांजिस्टर में दिस N is the emitter, this P is the base and this N is the collector. सो एमिटर जो है वो कैरियर्स चार्ज कैरियर जो है वो प्रोवाइड करता है इन अ वे दैट इफ दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज एमिटर. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो यहाँ एमिटर जो है वो एक पी टाइप सब्सटेंस होता है और उसके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं. सो यहाँ इस डायग्राम में हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का पूछा गया है. सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन NPN transistors are holes. Majority carriers are electrons while the minority charge carriers are holes. So question number 59, the correct option is option B. Now let's see question number 60. A student gives input to a NAND gate as shown in the diagram. The option that shows the correct truth table for the NAND gate with this arrangement of the input is. So
हमें पता है कि यहाँ पर एक नैंड गेट मौजूद है और नैंड गेट के जो इनपुट है वो कुछ इस तरह से है कि हम जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट में देंगे तो वो सेम इनपुट जो है वो x के लिए भी जाएगा और y के लिए भी जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन के अंदर अगर हम ऑप्शन ए को देखें, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ इनपुट सेम है बट यहाँ इनपुट सेम नहीं है। तो यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों इनपुट्स x और y की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। इसी तरह ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में भी यहाँ ये दोनों वैल्यूज सेम है बट यहाँ वैल्यू सेम नहीं है। तो दिस कुड नॉट बी दी करेक्ट आंसर बिकॉज डायग्राम के मुताबिक x और y जो इनपुट्स हैं वो सेम होंगे। तो अगर इसी डायग्राम को अगर हम इस तरह से बनाते हैं कि दोनों इनपुट्स सेपरेट होते, अलग अलग होते और इनका एक आउटपुट आता z, तो यहाँ हमारे पास x और y की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होती, बट राइट नाउ x और y सेम होने चाहिए। सो इस ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को अगर हम देखें, ऑप्शन सी ऑप्शन डी में दोनों जीरोज हैं, इनपुट सेम है, सेकेंड इनपुट की वैल्यूज भी सेम है। इसी तरह ऑप्शन डी में भी x और y दोनों इनपुट्स की वैल्यूज सेम है। सो अगर हम x और y दोनों जीरो पुट करते हैं, लेट्स से दिस x इज जीरो एंड दिस x इज जीरो, सो अगर इसमें एंड परफॉर्म करेंगे तो जीरो और जीरो का जो एंड है इट इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ हमारे पास नॉट ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर हम जीरो का नॉट ऑपरेशन करेंगे तो इट विल गिव वन। सो जीरो जीरो गिव्स वन, जीरो नैंड जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ लॉजिक स्टेट इज करेक्ट। इसी तरह वन वन इनपुट प्लेस करके देखते हैं हम, लेट्स से दिस x इज वन एंड y इज ऑल्सो वन। x पे भी वन इनपुट देते हैं, y पे भी वन इनपुट देते हैं, तो वन और वन एंड वन जो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा इट विल बी इक्वल टू वन, और इस वन का अगर हम नोट कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है z का वो हो जाएगा जीरो। सो ये जो ऑप्शन सी में सेट ऑफ लॉजिक स्टेट्स गिवन है दैट जीरो NAND 0 is equal to 1 and 1 NAND 1 is equal to 0। तो ये वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज ये सेट ऑफ लॉजिक स्टेट वेरीफाई करिए हमारी गिवन डायग्राम को। सो इन दिस वे ऑप्शन सी कम्स आउट टू बी आवर राइट आंसर। Then we have question number 61. Which of the following truth table represents the behavior of a NAND gate? So NAND gate की अगर हम working को identify करें, it is such that if we have two set of variables a and b, so a dot b would become a and b. So 0 1 1 0 and 1 1। अगर इन set of values का हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करें, सो वी नो दैट वन एंड वन इज वन, अदरवाइज ऑल आर जीरो। तो इसी तरह से अगर हम इसका इस एंड ऑपरेशन के आउटपुट को नॉट के साथ अप्लाई कर दें, सो इट विल बिकम ए डॉट बी होल बार दैट इज ए नैंड बी। सो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 1 1 एंड 0। सो ये कुछ इस तरह का ट्रुथ टेबल फॉर्म होता है। तो लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन डी में हमारे पास करेक्ट ट्रुथ टेबल मौजूद है जो कि एक नैंड गेट का हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Let's see question number 62. As the temperature of our transistor rises, so what will be the effect on the base emitter resistance? So अगर हम resistance की variation with temperature recall करें, so resistance directly proportional होती है temperature के साथ, and resistance can be inversely proportional to the temperature of the substance. So this case goes with the conductor, metallic conductor, जिसमें टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जबकि इनवर्स रिलेशन होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। एंड इफ वी रिकॉल द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर ट्रांजिस्टर, सो हमें पता है कि ट्रांजिस्टर वी हैव एनपीएन और
पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच्ड होता है बिटवीन द other two semiconductor. So transistor is formed with the help of semiconductors. तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है. सो इन दिस वे आवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 62. And one more thing, that the temperature coefficient of resistance that is represented by alpha. So conductors के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव रहता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में होता है. सो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस कि दैट टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, लाइक थर्मिस्टर और द फिलामेंट लैम्प और एनी मेटालिक कंडक्टर. इसी तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट जो सेमीकंडक्टर्स के लिए है वो नेगेटिव में होता है. दिस मींस के रेजिस्टेंस would decrease with the increase in temperature. Let's come to our question number 63. When an ideal diode is forward biased, अगर हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, so it behaves like a conductor. Because फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर इजीली करंट फ्लो करता है, द रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, कम होती है. जो डिप्लेक्शन रीजन है वो बहुत ही नैरो होता है, जिसकी वजह से इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और द मेजॉरिटी कैरियर जो है वो एमिटर से बेस के अंदर एंड देन कलेक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं. वाइल इन द रिवर्स बायस कंडीशन द रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज डिप्लेशन रीजन जो है वो वाइडेंड हो जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिटर में से बेस के अंदर इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 63 द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, कंडक्टर. Then we have the last question of this ATP exam paper 2021. In photoelectric effect, the quantity that does not affect the work function. वो क्वांटिटी जो कि वर्क फंक्शन को इफेक्ट नहीं करती, वो इनमें से कौन सी है? सो अगर हम वर्क फंक्शन को रिकॉल करें, सो वर्क फंक्शन मींस दैट मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस. वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड है ताकि वो एक फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या मटेरियल में से निकल सके. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस. सो नेचर ऑफ द मटेरियल मींस के वो मटेरियल का नेचर कैसा है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस एनर्जी से बाउंडेड हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो वर्क फंक्शन है वो कितना ज्यादा होगा या कम होगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग विद द अदर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर स्ट्रांग है तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता है. जबकि जो इन थर्ड ऑप्शन है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी. इंसिडेंट जो फोटॉन्स होंगे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के होंगे, दे विल ब्रिंग the each photon of that high frequency incident ray will have the large amount of energy, और उस large amount of energy का जो photon है उसको वो easily इस work function को overcome कर सकता है. जबकि potential difference in the power source will also affect the work function of the photoelectric substance. So the right answer would be intensity of the incident light, जिसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वर्क फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस में से वो इंक्रीज हो जाएंगे.